हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं फिर से आ गया बेदी सर फ्रॉम बेदी कॉलेज ऑफ फिजिक्स, आपके लिए नए क्वेश्चंस लेके आए। टॉपिक आज का फिर से रहेगा हमारा कौन सा, वेक्टर्स का टॉपिक। पहले भी मैं आपको वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस दे चुका हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, जेई मेंस एज वेल एज नीट क्वेश्चंस। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। The question is based on the pulleys as well as resolution of vectors. In the arrangement shown in the figure, the ends P and Q of an unstretchable string move downward with speed u. The pulleys A and B are fixed. The mass will move upward with the speed of. This is my question. Okay? आइए सॉल्व करें। तो मेरे बच्चा, ये जो एंड है इसको किसी ने पुल किया u स्पीड से, इसी को पुल किया u स्पीड से। बताना है ये कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा। तो अगर मैं बेटा इसको ऐसे डायग्राम को रिकन्वर्ट कर लूं थोड़ा सा, दिस इज से x, दिस इज से x, this is say y, this will be L, this will be L। तो इस ट्रायंगल में क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं? सर लगा सकते हैं। Now I am differentiating this 2L by dt, 2x dx by dt, 2y dy by dt। I am differentiating the result with respect to the time। Okay बेटा, I am differentiating the result with respect to the time, because as the pulleys move down, the mass will move up, and this variation will be in the passage of time. Now 2 deducted dl by dt, x dx by dt is 0. Why sir, why you are applying this as 0? As this move up, the x gap will remain same, but dy by dt will be the velocity of the mass. dl by dt is just the velocity of the rope by which it is pulling downward. This is velocity of mass. When you will get velocity of mass, what you will attain? Lu by y. It is y by L. Y by L, base over hypotenuse, cos theta. It means the velocity of mass is just the u by cos theta. Got that? Now my second question is, a proton in a cyclotron changes its velocity from 30 km per second north to 40 km per second east in 20 seconds. What is the average acceleration during this time? तो मेरा बच्चा, पहले मैं कोऑर्डिनेट्स ड्रा करूं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। प्रोटॉन इज मूविंग 30 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 40 किलोमीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे करते हैं? जब पहले कोई चीज जा रही हो किसी एक डायरेक्शन में, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन नोट करनी है और फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन नोट करनी है। इनिशियल क्या है? नॉर्थ। फाइनल क्या है? ईस्ट। इनिशियल नॉर्थ, फाइनल ईस्ट। रूल क्या आता है? जिधर पहले जा रहा हो उसका अपोजिट ले लो। इसका मतलब मुझे क्या एक्सेप्ट करना है? 40 किलोमीटर पर सेकेंड एंड देन 30 किलोमीटर पर सेकेंड टुवर्ड साउथ। What will be the resultant velocity of this thing? Under root 40 square plus 30 square, which will be under root of 2500, which will be 50 kilometers per second, and time will be, or sorry, acceleration will be net velocity upon time. Time is 20 seconds. 50 divided by 20, it is 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर किधर? अब इन दोनों का रिजल्टेंट मेरा बेटा किधर लगेगा?
इधर सपोज ये थीटा है, तो tan थीटा कैसे ये आएगा? इट इज 30/40. थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 3/4 साउथ ऑफ ईस्ट. दिस इज द आंसर. आप इसमें ये भी ले सकते हो, कोई कंपल्सन नहीं. अगर आप थीटा डैश लो तो उसका आंसर क्या आएगा? ईस्ट ऑफ साउथ. सो थर्ड क्वेश्चन. Two persons are holding a rope, 15 kg weight attached with a midpoint. Rope is now no longer horizontal. The minimum tension required to straighten the rope is. आइए, एक बंदे ने यहां से रोप को होल्ड किया और एक बंदे ने यहां से रोप को होल्ड किया. इसके सेंटर में लोड अटैच हुआ, सपोज 15 kg. ये रोप ऐसे हो जाएगी. नाउ इफ आई रिजॉल्व दिस टेंशन, this will be theta, this will be theta, here will be t cos theta, here will be t cos theta, here upward will be 2t sin theta. Now 2t sin theta equal to 15g, t 15g by 2 sin theta. For straight rope, theta must be equal to 0. It means sin 0 is 0. It means t will be infinitely large. T will be infinitely large. ओके, पूरे रोप को स्ट्रेट करने के लिए आपको कितनी टेंशन चाहिए? इनफाइनाइटली लार्ज वैल्यू ऑफ टेंशन. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन. A truck traveling due north at this turns west at same speed. What is the change in its velocity? पहले ट्रक किधर जा रहा है? नॉर्थ की तरफ 20 मीटर्स पर सेकेंड. टर्न्स वेस्ट विथ 20 मीटर्स पर सेकेंड. सेम स्पीड जो लिखा बेटा. पहले किधर जा रहा है? नॉर्थ. बाद में किधर जा रहा है? वेस्ट. रूल क्या? जिधर पहले जा रहा है उसका अपोजिट क्या होगा? 20 मीटर पर सेकेंड. साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ दोनों बराबर. आंसर विल बी 20√2 मीटर्स पर सेकेंड साउथ वेस्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज कंटेंट इज, this will be your very important question. Two cities A and B are connected by regular bus service with the buses plying in the either direction every 3 seconds. The speed of the each bus is uniform and equal to VB. A cyclist from A to B with uniform speed VC. A bus goes past in the cyclist in T1 seconds from A to B and every T2 seconds from B to A. Then T1 and T2 will be. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. दिस इज से लोकेशन A, दिस इज लोकेशन B. इस दो टाउन्स के बीच बसेस प्ले हो रही है. यहां से यहां बस जा रही है, यहां से यहां बस जा रही है. बसेस की डायरेक्शन है अपोजिट. एक बंदा साइकिलिस्ट वो जा रहा है कैसे? फ्रॉम ए टू बी विथ स्पीड VC. अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है रिलेटिव. वो साइकिलिस्ट क्या देखता है? हर T1 सेकंड बाद एक बस उसको पीछे से मिलती है और हर T2 सेकंड बाद एक बस उसको सामने से आती है. तो ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप ट्राई करें खुद. थोड़ा सा हिंट दूंगा, प्लीज
राइट। अगर यो बंदा ए से बी जा रहा है, उसके विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस क्या होगी? VB माइनस VC। relative velocity of V relative, that is relative velocity of bus with respect to cyclist, what will be? VB minus VC जब A to B की बात होनी है। और जो बस B से जा रही है उसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? VB प्लस VC। पता चला? ऐसा क्यों सर? यार A से B बस जो जा रही है और साइकिलिस्ट भी A से B जा रहा है, उन दोनों की डायरेक्शन होगी सेम। पर जो बस B से A आ रही है, पर साइकिलिस्ट तो A से B जा रहा है ना, उनके लिए वेलोसिटी क्या होगी? डायरेक्शन वाइज अपोजिट। दो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर सेम में जा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होती है? सबट्रैक्ट। अगर अपोजिट में जा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होती है? ऐड। यू गॉट दैट? अब ये एक वेलोसिटी है, ये एक वेलोसिटी है। टाइम पता है आपको? टाइम क्या है? जो क्रॉस पीछे से हो रही है T1, और दूसरा टाइम पता है क्या हो रहा है? T2। बेटा दोनों का डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस गैप बिटवीन द टू स्टेशन, क्या वो चेंज होगा? नहीं सर, वो तो चेंज नहीं होगा। वो डिस्टेंस क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बस इंटू टी। वेलोसिटी ऑफ बस इंटू क्या? टी। तो x जो आएगा गैप बिटवीन द लोकेशंस, वो तो ये होगा। इज दैट ओके? अब इसके लिए x क्या होगा? VB माइनस VC इंटू T1, और इसके लिए x क्या होगा? VB प्लस VC इंटू क्या? T2। आप इस x को इससे लोकेट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? T1 और T2। मैं चाहता तो था कि खुद आप करो, पर मैंने हिंट ही दे दिया। फिर भी कैलकुलेशंस करके ऑप्शंस मैच जरूर करिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थीम बिहाइंड द क्वेश्चन इज, जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी V1 माइनस V2 है, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आए तो रिलेटिव वेलोसिटी V1 प्लस V2 होती है। तो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। तो बेटा साथ साथ पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, मैं आपके साथ चलता रहूंगा, आपकी हेल्प करता रहूंगा। किसी तरह से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, मुझे शेयर करिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो देखते जाइए, आगे फॉरवर्ड करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। थोड़ी सी आपकी पॉजिटिव रिजल्ट से, रिस्पॉन्स से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे वीडियोस बनाता जाऊंगा और आपको शेयर करता जाऊंगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।